साइड हो जाओ। अरे पूजा करने सिस्टम बना दिया। दीपम गृहाण देवे ओके क्यों तो जाना है जल्दी आइए। मैं अब्दुल वहाब खान जी को निवेदन करूँगा कि हमारे माननीय अतिथिगणों को उनके रिस्पेक्टिव जगह पर बैठाएं। Today we have assembled here on the felicitation function of our beloved Honorable Justice Sri Prashant Kumar Mishra on his elevation as a judge of the Supreme Court of India. I, on behalf of Chhattisgarh Bar Association, welcome Honorable Justice Prashant Kumar Mishra, Judge Supreme Court of India, and respected Madam, Honorable Chief Justice Ramesh Sinha Sahab, Honorable Judges of our Chhattisgarh High Court, respected Madams, respected senior advocates in this function. Now I will request the dignitaries and everyone present here to rise for the national anthem. Welcome the guest of honor, Honorable Justice Prashant Kumar Mishra, Judge Supreme Court of India, Senior Vice President, Chhattisgarh High Court Bar Association. Sir. Honorable Justice Sri Sanjay Kumar Agarwal Sahab. Mr. Shashank Thakur to welcome Honorable Justice P. Sen Kosi Sahab. And for Mr. Rahul Tapashkar to welcome Honorable Justice Sanjay Shyam Agarwal Sahab. I request Mr. Pawan Kishan Wani to welcome Honorable Justice P. Sahu Sahab. Now I call upon to
to welcome Honorable Justice Srimati Rajni Dubey, Madam. Now I call Ms. Shivali Dubey to welcome Honorable Justice Sri N.K. Vyas Sahab. Now I call welcome Honorable Justice N.K. Chandravanshi Sahab. Puran Singh Bhatia to welcome Honorable Justice Sri Deepak Kumar Tiwari Sahab. Mr. Ashutosh Trivedi to welcome Honorable Justice Sri Sachin Singh Rajput Sahab. Now I request Mr. Bharat Lal. Now I call Mr. Nitansh Jaiswal to welcome Honorable Justice Sri Sanjay Jaiswal Sahab. One mistake has been committed by me that our Honorable Justice Radhakishan Agarwal Sahab has been left by me. So I am sorry for this. I request Mr. Jiten Shukla to welcome Honorable Justice Radhakishan Agarwal Sahab. Honorable Shri Justice Prashant Kumar Mishra Ji, Judge Supreme Court of India, Madam Mrs. Sucheta Mishra, Honorable Shri Justice Ramesh Sinha, Chief Justice of High Court of Chhattisgarh, Honorable Judges of High Court of Chhattisgarh and their spouses, Honorable former Judges of Chhattisgarh High Court, Officers of the Registry, respected senior advocates, respected seniors of the bar and my colleagues, our guests from different bar associations. It is with great pleasure and immense pride that I stand before you today to extend a warm welcome to Shri Justice Prashant Kumar Mishra, the first judge from Chhattisgarh to be elevated to the prestigious position by becoming the first judge from Chhattisgarh to be appointed to the highest court of our nation. Justice Mishra has opened new doors of opportunity and brought immense pride not only to the legal fraternity but also to the 3.2 crore people of Chhattisgarh. His elevation serves as a beacon of hope for countless aspiring legal professionals from Chhattisgarh, showing them that dreams can be achieved with determination and hard work. As we gather here today, let us acknowledge the significance of this historic moment. Justice Mishra from all corners of our great nation. Chhattisgarh, which is known for its rich mineral wealth, will also now be known for its intellectual wealth and sagacity. His presence in the Supreme Court will undoubtedly contribute to the enrichment of our judicial system, bringing a fresh perspective and enriching the discourse serves as an inspiration to countless individuals across Chhattisgarh and beyond. We are confident that your wealth of experience, wisdom and dedication will continue to guide our judicial system towards fairness, equality and upholding the rights and liberties of every citizen. Your appointment reminds us of the immense potential that resides within our Chhattisgarh, waiting to be tapped and nurtured, and for the present and future generations of Chhattisgarh people, you are a role model now. Honorable Justice Mishra, since his days in Jabalpur, has promoted and supported the people from Chhattisgarh. On behalf of everyone present here today, I extend my heartfelt congratulations to Honorable Justice Prashant Kumar Mishra on this remarkable achievement. We eagerly anticipate the profound impact you will have on the legal landscape of our country, and we wholeheartedly offer our support and cooperation in this noble pursuit. We all know that your tenure in Supreme Court will be marked by excellence, integrity, and a steadfast commitment to the justice. Once again, I warm welcome to you, Honorable Justice Prashant Kumar Mishra, and to Madam Sucheta Mishra. Welcome.
Jai Hind, Jai Satya. Good evening, everyone. As today we have gathered for the felicitation function of Honorable Justice Prashant Kumar Mishra, and number of advocates and people are eagerly waiting to meet him and to felicitate him. I would not waste much of your time, and I would request in sequential manner the respected. First of all, I would request Shri Shailen Dubey ji, representative of Chhattisgarh in Bar Council of India, to felicitate Honorable Justice Mishra. Thereafter, I would request Mr. Praful Bharat, Senior Advocate, on behalf of Chhattisgarh State Bar Council Special Committee, to felicitate Honorable Justice Mishra. Thereafter, I would request Mr. Vivek Ranjan Tiwari, former Chairman, Chhattisgarh State Bar Council and former President, Chhattisgarh High Court Bar Association. Now, Kosh Ram Sahu, former Chairman, Chhattisgarh State Bar Council. Thereafter, Mr. Prabhakar Singh Chandel, former Chairman, Chhattisgarh State Bar Council. We have some present and former members of State Bar Council. So I would request Mr. Ravindra Parashar from Korba. Thereafter, Mr. Prashant Prabhat Tiwari from Rajnandgaon, Mr. Rupesh Trivedi from Bilaspur, Madam Nirupama Bajpayee from Bilaspur, Mr. Alok Gupta, Shri P. Jangde, Shri Awadh Tripathi, and Shri Bharat Lonia, to welcome our guest of honor, Justice Mishra, Bar Association, and thereafter Shri Umakant Singh Chandel, former Interim President, Chhattisgarh High Court Bar Association, to welcome Honorable Justice Mishra. Marching ahead with the program and without wasting much of your time, I would request Senior Advocate Shri Haribhagat Agrawal ji, Senior Advocate Madam Mirza and Madam Sharmila Singh ji, Senior Advocate Ashish Srivastava sir, Senior Advocate Shri Abhishek Sinha sahab, Shri Yogesh Chandra Sharma sir, amongst us, we have some of the representatives and office bearers of some district and tehsil bar associations. So in that sequence, I would request Mr. Hemant Tiwari, President, Ambikapur District Bar Association, and in Thakur from Baroda Bazar, and his colleagues are requested. Then I would call upon Shri C.P. Bajpayee, President, Bilaspur District Bar Association, Korba, and his office bearers and friends who have come all the way from Korba. Shri Laukant Dubey, President, Patharia Bar Association, and his friends are requested to please come on the dais. Shri Nareshwar Patel Sailani, President, Pithora Bar Association. I request Shri Naresh Sailani, Pithora Bar Association, and his friends. Thereafter, we have Ram Naresh Patel and his friends from Manendragarh, who have come from Manendragarh for this function. I would request them to come on the dais. And thereafter, Shri Ajay Mishra, Advocate from Jabalpur. I request him
I would request Mr. J.K. Ginda, former Advocate General, State of Chhattisgarh, to welcome Honorable Justice Mishra. I am aware of the fact that many young advocates and middle-aged advocates. In this sequence, I would request Mr. A.S. Kachwaha, Mr. Raghavendra Pradhan, Mr. Manish, Mr. Pankaj Agrawal, Mr. Anand Shukla, Vivek Sharma, Mr. J.N. Nande, Mr. Parag Kotecha, Mr. Anil Singh Rajput, Mr. Shailendra Bajpayee, Mr. Raj Avasthi, Mr. Sanjay Agrawal, Mr. Gautam Khetrapal and Mr. R.S. Patel. I request all of them to welcome Honorable Justice Mishra. I would call upon Mr. Prateek Sharma, Shri A.N. Pandey, Shri Somkant Verma, Shri C.G.K. Rao, Shri Vaibhav Shukla, Shri Shuyas Dharbadgaiya, Shri Chandresh Srivastav, Shri Sumit Singh, and Madam Madhunisha Singh to welcome Honorable Justice Mishra. Carrying forward the welcome function, I would now request respected Shri B.P. Gupta sir, Shri H.V. Sharma sir, and Shri M.P.S. Bhatia sir. Shri Satish Gupta ji, Shri Somesh Bajaj ji, and Mateen Siddiqui sahab. And I would request Mr. Bhaskar Payasi, Mr. Dhaniram Patel, Shri Rajkumar Gupta, Shri Anil F. Pandey, Shri Kaustubh Shukla, Shri Rohit Sharma, Madam Sangeeta Mishra, Advocate, Madam Sarina Khan, Madam Sophia Khan, Madam Kiran Jain, Katyayani Vishnupriya, I request Shri Varunendra Mishra, Sangeeta Soni, Shri Sandeep Dwivedi, Pandit Vijay Mishra ji, Shri Samir,
श्री अरुण शुक्ला, श्री देवकरण ग्वालरे, श्री रमाकांत पांडे, श्री यूएनएस देव, श्री आनंद गुप्ता, श्री जमील अख्तर लोहानी, श्री राहुल मिश्रा, श्री अनंत वाजपेयी, श्री समीर सिंह. I request now I call upon Shri Anil Gulati. I request Shri Ravi Shwalji, Vivek Sharma, Anil Tawardkar, भरत गुलबानी, मनोज मिश्रा जी, अनंत गुप्ता, श्री उत्तम पांडे जी, श्री आदित्य तिवारी, श्री ऋषभ पिसेन, श्री ऋषभ सिंहदेव सामंत, श्री डी.एन. प्रजापति, मैडम शैलजा शुक्ला, मैडम दीप्ति शुक्ला, चंद्रदीप प्रसाद. They all are requested to please. श्री रवि पांडे, अभ्युदय सिंह, हिमांशु शर्मा, I request Shri Ashok Verma sir. Now I request Shri Jitendra Pali, श्री भूपेंद्र सिंह, श्री राकेश जाजी, प्रज्ञादित्य आचार्य, विवेक शर्मा, सिद्धार्थ दुबे, I request Mr. Prasoon Bhaduri, Shri Arvind Singh ji, श्री अमृतांशु शुक्ला जी, श्री MC Maheshwan Gupta ji, who is present here. I request him to please come on the dais and welcome Honorable Justice Shri Mishra. श्री आदित्य खरे, श्री गुरुदेव आई शरण, Mr. Sunny Agrawal, I request him
Since we have time constraint, so we'll continue with the further program. And after the garlanding and welcome of Honorable Chief Guest, I would request Sri Abdul Wahab Khan, President, to address the gathering and to deliver his presidential speech. सभी को सादर नमस्कार। हमारे परम आदरणीय, हम सभी के चहेते, छत्तीसगढ़ के सपूत, शांत और धैर्यवान, बहादुर, मजबूत और साहसी माननीय मुख्य अतिथि, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति माननीय प्रशांत कुमार मिश्रा साहब, माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा साहब, उपस्थित समस्त सम्माननीय न्यायाधिपतिगण, छत्तीसगढ़ राज्य के महाधिवक्ता श्री सतीश चंद्र वर्मा साहब, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री रमाकांत मिश्रा साहब, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधिपति माननीय सुनील कुमार सिन्हा साहब, न्यायमूर्ति श्री सामंत साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिभगत अग्रवाल साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री डॉक्टर निर्मल शुक्ला जी, VVS मूर्ति साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोविंद राम मीरी साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री YC शर्मा साहब, श्री किशोर भादुड़ी जी, श्री BP शर्मा साहब, श्री विवेक रंजन तिवारी साहब, श्री राजीव श्रीवास्तव साहब, श्री अभिषेक सिन्हा साहब, श्री आशीष श्रीवास्तव जी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय रजिस्ट्री के माननीय अधिकारीगण, छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न अधिवक्ता संघों से आए संघ के अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण एवं प्रतिनिधिगण, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि श्री शैलेंद्र दुबे साहब, स्टेट बार काउंसिल छत्तीसगढ़ के पूर्व अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चंदेल साहब, घोषराम साहू जी, स्टेट बार काउंसिल के पूर्व सदस्य चंद्र प्रकाश जांगड़े जी, जनार्दन त्रिपाठी जी, आलोक गुप्ता जी, रविंद्र परासर जी, रुपेश त्रिवेदी जी, प्रशांत कुमार तिवारी साहब एवं समस्त उपस्थित सम्माननीय अधिवक्ता साथियों, आप सभी को हार्दिक नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सादर वंदन करता हूं। हमारे परम आदरणीय, हम सभी के चहेते, छत्तीसगढ़ के सपूत माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा साहब का अपने उनके अधिवक्ता संघ में भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति बनने के बाद प्रथम आगमन पर तालियों की करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। हमारा अधिवक्ता संघ और छत्तीसगढ़ राज्य आपके पदस्थ होने से गौरवान्वित है। मैं इस अवसर पर श्रीमती माननीय प्रशांत मिश्रा मैडम का भी हार्दिक स्वागत करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तप्त मौसम में ठंडी हवा मिल गई, तप्त मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए यूं लगा जैसे तकलीफों को कुछ दवा मिल, जैसे तकलीफों को कुछ दवा मिल। अनुभव ज्ञान रूपी ऐसी जादुई कलम है आपके पास, जिससे हमारी विभिन्न न्यायालयीन कार्यों के
दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं का आसानी से समाधान के प्रति अधिवक्ता संघ पूर्ण रूप से आशान्वित। जैसा कि आपको छत्तीसगढ़ की आधारभूत समस्याओं और व्यवहारिक समस्याओं के बारे में अच्छे से मालूम ही है कि यहाँ के लोग गांवों में, बीहड़ पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले सीधे साधे अशिक्षित गरीब तबके के लोग हैं। सीधे सरल अशिक्षित होने के कारण वे शोषण के शिकार हो रहे हैं, जिनके लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ही अंतिम आस्था का मंदिर है। यहाँ के पीढ़े शोषित दिल्ली तक जाने की सोच ही नहीं सकते हैं। उनके लिए दिल्ली दूर की बात है। ये इतने भोले और सरल होते हैं कि वे न्यायालय के समक्ष एवं यहाँ तक कि अपने अधिवक्ता के समक्ष भी सीधे सपाट तरीके से बातें व तथ्यों को रखते हैं, जो प्रक्रिया या कानून की कसौटी में हो सकता है कि खरा खरा न हो, परंतु उन्हें इस मंदिर रूपी आस्था के केंद्र से बहुत उम्मीद होती है कि उन्हें न्यायदान के रूप में कुछ न कुछ अवश्य न्यायदान मिलेगा। इससे उनकी आस्था भी मजबूत होती है। इस दिशा में आपके दिशा निर्देशों और माननीय मुख्य न्यायाधिपति जी के प्रयासों से निश्चित ही पीड़ित शोषित जनों को सम्मानजनक रूप से त्वरित न्याय प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय भारतीय न्यायिक जगत में अपनी अलग पहचान बनाएगा, जिसके लिए अधिवक्ता संघ और अधिवक्ता साथी भी कृत संकल्पित हैं। आंधियों से ना बूझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, आंधियों से ना बूझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, वो नवाजे तो जुगनू से सितारा हो जाऊं, वो नवाजे तो जुगनू से सितारा हो जाऊं। एक कतरा हूं, एक कतरा हूं, मुझे ऐसी सिफत दे मौला, एक कतरा हूं, मुझे ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा नजर आ जाए तो दरिया हो जाऊं, कोई प्यासा नजर आ जाए तो दरिया हो जाऊं। आपको छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ की ओर से पुनः बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और अंतिम में 2 लाइन कहना चाहूंगा। चाहे आपके लिए, माननीय प्रशांत मिश्रा साहब के लिए, चाहे जो भी फसल उगा ले, चाहे जो भी फसल उगा ले, तू जलधार बहाता चल, चाहे जो भी फसल उगा ले, तू जलधार बहाता चल, जिसका भी घर चमक उठे, जिसका भी घर चमक उठे, तू मुक्त प्रकाश लुटाता चल, तू मुक्त प्रकाश लुटाता चल। जय हिंद, धन्यवाद। I would request our patron and Honorable Chief Justice of Chhattisgarh High Court, Shri Ramesh Sinha Sir, to address the gathering on this auspicious occasion. My Lord, Honorable Mr. Justice Prashant Mishra, Judge Supreme Court of India, my esteemed brother and sister judges, their spouses, their senior advocates, members of the bar, members of the registry, a very good evening to all of you. This moment is a historic moment. As Justice Prashant Mishra, who has been from the legal fraternity, has been elevated to the Supreme Court, being the first judge of Chhattisgarh High Court. It's a great moment for all of us. And I also feel myself proud to be present on this very occasion. I am thankful to all of you for the love and affection which you people have given to me also and have welcomed at bar. And here, Justice Prashant Mishra, I am seeing the members of the bar who are present along with their spouses. They are standing. I was just asking Prashant Mishra, where is the alternative arrangement if some function like this is to happen next? And probably he has suggested me some alternative, but I see to it that I can be able to get this done in my tenure by being the Chief Justice of this court. And I will only say that you people are here
and present over here to hear Justice Mishra, whom you people have loved so much, and his standing at bar. I feel myself also proud that judge should be like him. Thank you so much. Thanks a lot, Honorable Sir, for such kind words. Now, as I see, everyone is very much eager to hear the guest of honor. So I'd most humbly request Honorable Justice Prashant Kumar Mishra to address the gathering. Honorable Chief Justice, High Court of Chhattisgarh, Justice Amit Sinha साहब, बार के अध्यक्ष अब्दुल वहाब खान जी, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर जजेस, लॉरेंट एडवोकेट जनरल सतीश वर्मा जी, रजिस्ट्रार जनरल अरविंद वर्मा जी और रजिस्ट्री के सभी अधिकारीगण, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि श्री सलीम दुबे जी और छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगहों से आए बार काउंसिल के मेंबर्स। यदि कोई छूट जाए तो मैं बोलूँगा कि जितने लोगों का नाम अब्दुल वहाब खान जी ने लिया है वो सब Honorable judges के spouses, revered madams, senior members, senior advocates, esteemed senior advocates of the High Court, all other advocates respected present over here, ladies and gentlemen, बहुत लोग उधर खड़े हैं पीछे, जैसे सिन्हा साहब ने कहा, मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ से अगला जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन होगा उसके पहले नया ऑडिटोरियम बन जाना चाहिए। I am literally overwhelmed and it's a very momentous, emotional, sentiment and touching occasion for me to be amongst my own loyal friends who have rubbed shoulders with me, and we have practiced during those days and they were with me during thick and thin at all point of time. मैं याद करूं तो वो 1 नवंबर 2000 और शायद जितनी छत्तीसगढ़ की एज है उतनी मेरी भी एज यहाँ है और हम संग संग साथ साथ पले बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ बार, छत्तीसगढ़ और मैं, और मैंने उस दिन भी कहा था कि जब छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को कॉज लिस्ट निकली तो सबसे पहला केस मेरा था। आइटम नंबर 1 इन द कॉज लिस्ट ऑन 1 नवंबर 2000, दो आई डोंट हैव द कॉपी ऑफ दैट कॉज लिस्ट। सिन्हा साहब से बोलूंगा अगर वो मिल जाए तो मेरे एक वकील के रूप में मेरी यादगार जो है। तो उसके बाद से जैसी जैसी जर्नी चली और अब तो इतिहास की बातें हुई हैं। कई लोग बोलते हैं कि आपने इतिहास बनाया, लेकिन मैं बोलता हूं कि मैंने नहीं बनाया इतिहास, इतिहास ने मेरे को बनाया है। It is all the circumstances which has created me, and I am here today amidst all of you because the land of Chhattisgarh provided me that opportunity.
मैं सोचता हूं कभी कभी अगर मैं जबलपुर से वापस नहीं आता तो आज मैं जो हूं वो नहीं होता। और मैं सलाम करता हूं छत्तीसगढ़ की धरती को। जितना छत्तीसगढ़ महतारी ने मुझे दिया है उतना मैंने अपनी जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं की थी। और करते तो सब अच्छा ही है, अच्छा सोच के ही करते हैं, लेकिन मिलता कुछ चंद लोगों को ही है और उसी को हम बोलते हैं इट इज ऑल जो डेस्टिनी है, प्रारब्ध है। अभी जब हम एम्प्लॉयज एसोसिएशन का जो फंक्शन था, फेलिसिटेशन फंक्शन के ठीक पहले उसमें एक वक्ता बोल रहे थे, गीता के कर्म योग के सिद्धांत को बोल रहे थे। मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, वो श्लोक मेरे को याद नहीं है मुझे। तो मेरा ये सोचना था उस समय, अभी भी, कि कर्म योग का सिद्धांत अपनी जगह है, आप कर्म करते हैं, लेकिन हम सब लोग न तो कृष्ण हैं न अर्जुन हैं। हम सब लोग सामान्य मानव हैं। तो करते हैं, करते करते महत्वाकांक्षाएं भी होती है। ये बोलना कि मैं बिल्कुल निर्लिप्त हूं, मैं कुछ नहीं सोचता, सिर्फ काम करता हूं, ये ढकोसला होगा। हर आदमी जो है महत्वाकांक्षा रखता है और रखनी भी चाहिए, लेकिन महत्वाकांक्षा जो है एक साइड बाय साइड होनी चाहिए। उसमें जो प्रेफरेंस है, जो डोमिनेंट एस्पेक्ट है आपके काम का, वो काम ही होना चाहिए। तो जब वो डोमिनेंस काम के और आपके बोनाफाइड्स पे फोकस रहता है तो महत्वाकांक्षा जो है वो अपने आप नर्चर होती है, आपको अलग से डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करना पड़ता है। तो जब आप अलग से डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करते हैं तो आपको लगता है कि ये बोनाफाइड्स है और ये आदमी जो है करने के लिए कर रहा है, कुछ पाने के लिए नहीं कर रहा है। मैं हमेशा से सोचता हूं, जब भी मैं किसी कमिटी में रहता था या चाहे किसी भी और समय, चाहे मैं बाहर में रहा, तो हमेशा से ये कहता हूं कि आप जो करना है, आपको जो वर्क असाइन है वो आप करते जाओ, रेस्ट गॉड विल टेक केयर ऑफ। और मैंने उस दिन बिलासपुर बाहर गई फंक्शन में बोला था कि जब ऊपर वाला नमस्ता है तो 2 + 2 4 नहीं होता, 2 का 2000 भी हो जाता है, 2 + 2। यू नेवर नो कि लाइफ में किस मोड़ में आपकी जिंदगी कैसी होगी और क्या लिखी हुई है। वो जो दुष्यंत कुमार की कविता है ना कि एक पत्थर तबियत तो उछालो आरो यारों, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता। तो मेरी जर्नी ऐसे ही है कि आप करते रहो और पत्थर उछालते रहो, सुराग होगा, क्यों नहीं होगा सुराग। जब छत्तीसगढ़ से हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है, या जो सिस्टम में बैठे लोग हैं उनको ये लगता है कि हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और छत्तीसगढ़ को हुआ। आई एम लकी कि आई एम द फर्स्ट, बट आई डोंट क्लेम that I am meant for it. They thought the persons who are at the helm of affairs that he can be picked up. It is not that he alone was capable to be picked up. It is my fortune, it is my destiny that God created that opportunity for me and I am there. मेरे को, मैं जब वकालत करता था तो मेरे को हमारे एक बहुत स्नेही और पूज्य एक सज्जन है, वो बोलते थे हमेशा कि आपको जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप ये कभी मत सोचिए कि आपको सुरखाब के पर लगे हैं और आपके अलावा कोई नहीं है।
there is no other option, it is inevitable. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी ये मत सोचिए कि आपके बिना उनका काम नहीं चलेगा इसलिए आपको दिया गया है। यहां बहुत लोग पड़े हुए हैं सिस्टम में, अवेलेबल हैं, जो कि जिस पद पे आप हैं उस पद पे वो भी आ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पद मिलने के बाद ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि आई एम द अल्टीमेट। और इसीलिए बोलते हैं कि जब आपको पावर मिलता है तो पावर शुड नॉट एंटर द हेड। और जहां नशा, चाहे वो सत्ता का नशा हो या कुर्सी का नशा हो या किसी भी प्रकार के पावर का नशा हो, छोटे छोटे पद पे भी रहते हैं तब भी पावर का नशा रहता है। चाहे बार के अध्यक्ष हो तब भी पावर का नशा रहता है कई बार। या बार काउंसिल के अध्यक्ष हूं, तो मैं बार काउंसिलर तो मैं भी था, और तो विदाउट मीनिंग एनीथिंग टू मिस्टर अब्दुल वहाब खान, उनको नशा कभी नहीं रहा। देखिए वो खुद नशा नहीं करते, नशा पैदा करते हैं। तो पावर शुड नॉट एंटर योर हेड। और जीवन में मेरे को जो फीलिंग होती है कि आपको एक बैलेंस बना के रखना है। कभी भी आप इस लिमिट तक, इस एक्सट्रीम पोजीशन में न जाएं कि जहां से आप वापस ना आ सकें। और इंस्टीट्यूशन के अंदर, चाहे मैं एजी रहा या बार काउंसिल का चेयरमैन रहा या हाई कोर्ट में भी रहा, तो इंस्टीट्यूशन के अंदर हर कंपोनेंट जो है उनका केयर करना, जो इंस्टीट्यूशन को होल्ड करता है उसकी जिम्मेदारी है। Whether the component is lawyer, whether the employees, whether the litigants, whether the judges, whether the judges of the subordinate courts, employees of the subordinate courts, there are a whole host of elements who form an integral institution like High Court or like judiciary, state judiciary. So you have to take care of every component of the institution. हम लोग कई बार क्या होता है कि बहुत फोकस हो जाते हैं कि कई लोग वकीलों का ही भला करना चाहते हैं, कई लोग पक्षकारों का ही भला करना चाहते हैं, और कई लोग नाना प्रकार से अन्य लोगों का भला करना चाहते हैं। तो किसी एक को भला करने के चक्कर में आप दूसरा जो पार्ट है इंस्टीट्यूशन का उसको वीक नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे कुर्सी है या कोई भी चीज जो खड़ी होती है वो 2, 3, 4 पाए होते हैं। तो आपको हर पाए को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर कुर्सी का एक पाया भी वीक हुआ तो बाकी 3 पाए कोई काम के नहीं रह जाते हैं, और वो गिरना उसका निश्चित है। और एक पाए में भी दीमक लग गई तो बाकी तीनों में दीमक धीरे धीरे लगनी ही लगनी है। तो इंस्टीट्यूशन को केयर करना पड़ता है, पार्ट बाय पार्ट आपको सब में फोकस करना पड़ता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो चीज व्यवस्थित और खड़ी होती है। मैं हमेशा बोलता हूं और वकीलों को भी बोलता हूं और सबको, कई बार दूसरे जो ऑडियंस रहते हैं, कि इंटीग्रिटी जो है वो इंटीग्रिटी पार्ट टाइम इंटीग्रिटी नहीं होती है। क्या आप अपने ऑफिस में गए 10:30 बजे और 4:30 बजे तक इंटीग्रिटी है? तो आई मेंटेन द इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इज ए फुल टाइम जॉब, 24/7 जॉब। Either you are in your place of work or in your home doing your office work, or even when dealing with your friends and relatives and all others. तो जब आप
अच्छा, इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए कोई बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। आपको ये है कि जो है वो है, बस, नथिंग मोर। इफ यू आर नॉट आर्टिफिशियल देन यू आर इंटीग्रल। इंटीग्रल इज वन होल, एक पूरा। आप जब पूरा हो जाते हैं, किसी के सामने न दिखावा है न छलावा है, तो फिर आप यू आर मेंटेनिंग इंटीग्रिटी। जो हैं वो हैं। हम एज ए जज बहुत बार ऐसा होता है कि when dealing with a case we go at times tangent और berserk, बाद में फील होता है कि ये हमको नहीं करना चाहिए था। और मैं तो हमेशा बोलता हूं कि a judge should be open till the last full stop at the end of the judgment. अगर जज ओपन नहीं है, you should be open to correction. और आपको if you have seen my working, my lawyer friends, मैं तो बोलता था कि आप जाते क्यों नहीं ऊपर सुप्रीम कोर्ट, इस जजमेंट के खिलाफ, मेरे जजमेंट के खिलाफ जाइए सुप्रीम कोर्ट, लॉ सेटल होगा, या हमको मालूम चलेगा तो हम ही सुधार लेंगे अगली बार अगर गलती कर रहे हैं तो ओपन तो आपको होना ही पड़ेगा। सिस्टम के अंदर अगर यदि आप ओपन नहीं हैं तो चलाना मुश्किल है। एंड इफ यू आर नॉट ओपन देन यू आर लैकिंग। अगर आप विथहोल्ड कर रहे हैं अपने आप को, जो मन में है वो आपकी वर्किंग में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है एज ए जज, तो देन यू आर लैकिंग इंटीग्रिटी। आपको तो वकील को पूरा बताना पड़ेगा कि भाई मेरे मन में ये चल रहा है, आप आओ और हमको पूरा बहस में बताओ कि आपके पास क्या है इसके जवाब में। और ओपन नहीं है तो फिर थोड़ा सा एनीवे बोर्ड आज टीचिंग और लर्निंग ज्यादा हो जाएगी तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी तो माहौल थोड़ा दूसरा है। गर्म हो गया क्या? आप गर्म चाहते हो कि ठंडा? मिस्टर शैलेश बात पे गर्म चाहते हैं कि ठंडा? मैं मेरा जो अनुभव है पिछले 3 साल में, 3 महीने में, जब से ऑनरेबल सिन्हा साहब यहाँ एज चीफ जस्टिस आए हैं, मेरा यह सोचना है कि दिस हाई कोर्ट इज इन सेफ हैंड्स। यू बिलीव मी, मैन टू मैन, चाहे हम हैं या जितने जज यहां से आए और चले गए, आपने देखा होगा सन 2000 से कि थोड़ा सा डिफरेंस तो रहबे करेगा। और वकीलों में भी तो डिफरेंस रहता है। कोई वकील बहुत एग्रेसिव है, कोई वकील बहुत डोसाइल है, और कई तो बहस ही नहीं करते और किसी और को ब्रीफ टिका के जो है वो रिलीफ लेके चले जाते हैं। तो ये देखिए, इंस्टीट्यूशन की नाइसिटी ही ये है, और लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे और इंस्टीट्यूशन वहीं का वहीं खड़ा रहता है। जजेस तो मुसाफिर की तरह है, आए और गए। और जो एक्टर्नल है इस इंस्टीट्यूशन में, एम्प्लॉइज भी आते जाते रहेंगे। जो एक्टर्नल है वो है लॉयर, वकील इज लॉयर, इंटरनल है। तो आप लोग के वकीलों के बिना हाई कोर्ट की या लीगल सिस्टम की कल्पना भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वकील नहीं है तो यू कैन नॉट फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। इट इज ओनली द लॉयर हु रिमाइंड्स यू that you have to adhere the principles of natural justice. और यदि लॉयर नहीं है तो लर्निंग बंद हो जाती है। हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी लॉयर अच्छा बहस किया तो जजमेंट अच्छा आएगा। जजमेंट अगर अच्छा नहीं है तो समझ जाइए कि इसमें वकील जज की गलती नहीं है, लॉयर की गलती है। तो अब देखिए, पूरी जर्नी जो भी हुई हमारी, मैं आई एम रिप्रेजेंटिंग छत्तीसगढ़।
एंड आई एम अवेयर ऑफ दैट कि मेरे को छत्तीसगढ़ की जो साख है वो दिल्ली में भी बनाए रखनी है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी चलेगी है। और मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ आप सब लोगों का भी मान सम्मान बढ़े। और अगर छत्तीसगढ़ का मान सम्मान कम हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा, ये मेरे को मालूम है। छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया। हाँ? ये तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं बता रहा हूं, जब ये प्रक्रिया हो रही थी, वो समय आया जब तो सहसा हमको भी नहीं हुआ विश्वास कि वास्तव में छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंटेशन मिल गया है। और जब मैं वहां चला गया, मेरी ओथ हो भी गई, उसके बाद भी बहुत दिन तक तो मेरे को फीलिंग ही नहीं आती थी। मेरे को फीलिंग ही नहीं आती थी कि अच्छा, उसके बाद तुरंत बाद वेकेशन हो गया, जैसे ही वो हुई फिर वेकेशन हो गया, तो और भी कोई फीलिंग नहीं आई। बंगला मिला नहीं है, अभी बंगला मिला नहीं है। मैं जो पहले आंध्र प्रदेश भवन में रहता था, अभी भी आंध्र प्रदेश भवन में हूँ, तो वो भी फीलिंग नहीं आ रही है। तो फीलिंग कहने का मतलब ये है कि अभी भी मैं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ही जज हूँ, ऐसा लगता है। मेरे को एक बार किसी ने पूछा कि आपको ये फीलिंग आ रही है क्या सुप्रीम कोर्ट जज बनने की, तो मैं मन में सोचा कि फीलिंग नहीं आए तो ही अच्छा है। जिस दिन फीलिंग आएगी तो वो एक सर चढ़ने का जो बेसिस है वो तैयार होने लगता है, उसका जो फाउंडेशन है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे को कभी फीलिंग ना आए, मेरे को हमेशा यही फीलिंग रहे कि मैं इस बार का हूं, इस बार का मेंबर हूं। एक किसी का भी एक कोई इवेंट होता है, कोई एक नया घटना होती है अच्छी, किसी प्लेस से रिलेटेड या किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, तो इंस्पिरेशन जनरेट होता है, सोर्सफुल होता है। आपको उसका पार्ट बनना नहीं पड़ता है, ईश्वर बना देता है आपको उसका पार्ट। तो मैं कोई इंस्पिरेशन नहीं हूं, वो जो घटना है दैट इज एन इंस्पिरेशन। द होल प्रोसेस विच बिगेन in either 1987 4th of September when I joined, or when 2004 when I became additional AG. I don't know how it happens. I am reminded कि मैं जब बार काउंसिल का चेयरमैन बना, थोड़ा सा समय लूंगा सिन्हा साहब को जाना था जल्दी, कुछ उनको घर में प्रॉब्लम थी। एनीवे, तो क्या अपनों के बीच रहते हैं तो कई बार अपनत्व वाली बात करनी पड़ती है, इनफॉर्मल होना पड़ता है। तो कैसे आपको किस्मत साथ देती है और ऊपर वाला जब मेहरबान हो। तो मुझे बार काउंसिल का जब इलेक्शन था तो रात को 11 बजे मेरे पास आए 3-4 मेंबर्स कि कल आपको अध्यक्ष बनना है। मैं बोला बार काउंसिल में 25 बार काउंसिल के सदस्य, मतलब सबसे दोहर चुनाव है बार काउंसिल का। मतलब 3-3, 4-4 वकीलों के 6 या 7 ग्रुप रहते हैं जब चेयरमैन का चुनाव होता है तो। और हर ग्रुप जो चाहता है कि मेरे 3-4 के बीच का कोई आदमी चेयरमैन बन जाए। तो बहुत कठिन चुनाव होता है, उसमें कोई लोग आके बोले कि भाई आपको चेयरमैन बनना है, तो मेरे को तो लगा बेवकूफ पड़ा है, मेरे को कल मेरी फजीहत कराएंगे ये। लेकिन एज द लक वुड हैव बीन, दूसरे दिन में गया जब 11 बजे 11:30 बजे शैलेंद्र दुबे जी और बाकी लोग इसके
विटनेस हैं, तो 11 बजे 11:30 बजे अचानक ये हुआ कि देयर इज कंसेंसस और आई एम इलेक्टेड ऑन अ पोस्ट and I did nothing, no maneuvering, nothing. I was sitting quiet at my house at 11 p.m. 3-4 members came and they said that this blah 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 and this. Everything happened overnight, something, as if something miracle is happening. तो miracles do happen. हमको तो आपको भगवान के ऊपर तो भरोसा करना पड़ेगा, उनके बिना तिनका तक नहीं हिलता है। अपन सोचते हैं कि मैं बहुत योद्धा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैंने ये करा लिया, वो करा लिया, कुछ नहीं, सब ऊपर वाला करता है। आप बस मत्था टेक के चलते रहिए। मत्था टेक के मतलब अगर सिर उठा के ऐसा किया आपने तो वो सामने कोई ना कोई पत्थर लगेगी, वो ठोकर खा जाएंगे। तो आप ग्राउंडेड रह के अपना काम करते रहिए। और मैं चाहता हूं कि इस बार का हर मेंबर इतनी ऊंचाइयों को छुए कि जो शायद मेरे से भी बड़ा हो। और वो होगा, एक दिन हो सकता है, क्योंकि हिस्ट्री हम नहीं बनाते, हिस्ट्री बनती है, तो हिस्ट्री बनेगी एक बार और। आप लोग तब बनाएंगे। इस बार का हर आदमी जो है इतना कॉम्पिटेंट है, या सो मच ऑफ लीगल एक्यूमेन, सो मच ऑफ कॉम्पिटेंसी, और जो अब्दुल वहाब खान ने बोला मजबूत धैर्यवान का 3-4 दिनों के हो, तो वो सब इस बार के हर आदमी में है। और इस बार का हर मेंबर जो है इसको साबित करने में सक्षम है। मैं अभिभूत हूँ बार ने जो मेरे को सम्मान दिया, और ये सम्मान मेरा अकेले का नहीं, इस बार के हर मेंबर का है। और किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो, दिल्ली में मैं हमेशा हूँ आपके साथ। अभी तो बंगले में शिफ्ट होने में देरी है, एक बार मैं शिफ्ट हो गया तो आप ऑल आर वेलकम, ऑल आर वेलकम। आप आइए। दिल्ली में मेरे को छत्तीसगढ़ से कोई भी आता है तो इतना अच्छा लगता है। जैसे मैं जब यहाँ बिलासपुर में था तो रायगढ़ से कोई आता था तो अनऑब्स्ट्रक्टेड एंट्री थी। अच्छा, हमारे घर के अटेंडर जो पियोन है वो भी जानते थे, तो वो आके बोलते थे, नाम नहीं बताते, सर वो रायगढ़ से कोई आया है। तो जब मैं आंध्रा गया तो बिलासपुर से भी वकील लोग आते थे, कई लोग। तो मैं आंध्रा में थे तो आंध्रा के मेरे पीएस पीपीएस सब समझ गए थे। उन लोग बोले साहब वो छत्तीसगढ़ से कोई आया है। तो वैसे ही मैं फिर से बोलूंगा कि अगर दिल्ली में हूं मैं तो आप लोग कोई भी आइए। और मैंने तो बहुत वेंकटेश स्वामी बालाजी तिरुपति में बहुत पुण्य कमाया है। यहाँ के बहुत लोग जाते थे, मेरे को अपना आधार कार्ड और नाम भी देखते थे और दर्शन करके आते थे। तो मैं सोचता था 50% पुण्य तो मेरे को भी मिल रहा है। एक बार मैंने अपने पीपीएस को बोला, जब वो एक दिन क्या हुआ कि ऐसे 3-4 ग्रुप के आ गए, किसी में 6 किसी में 8, तो दिन भर करीब 20-25 लोग हो गए दर्शन करने। तो मैं बोला मैं प्रोटोकॉल ऑफिसर हूँ, बट आई लव दैट। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, आई लव दैट। क्योंकि जब भी कोई मैसेज आता था दर्शन के लिए तो उसमें छत्तीसगढ़ की माटी की सुगंध आती थी कि कोई मेरे देश से, मेरे वतन से चला आ रहा है। तो आई लव्ड इट, हेल्पिंग देम। आई लिटरली लव्ड इट एंड आई विल लव टू कैरी इट ऑन इन दिल्ली। कभी भी मेरे लायक कोई हो तो आप लोग बताइएगा। आई एम वन अमंगस्ट यू। डोंट ट्रीट मी दैट देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन यू एंड मी। एंड दूर तो गए हैं लेकिन दूरियां नहीं हैं। आप
अब्दुल वहाब खान जी को, बाहर के सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। A great pleasure for all of us present here because we were really missing the witty remarks, and today your speech was, there were witty remarks, but whatever you said, it has inspired confidence in all of us and we are really very happy. हम सभी अभिभूत हैं छत्तीसगढ़ की इस भूमि के प्रति आपके स्नेह और प्यार को देखकर। And we all are lucky that Honorable Justice Mishra, along with Madam Mishra, spared his valuable time. On a short request, he agreed for this. And now, taking the program, marching ahead, taking the program in the future, next step, I would request all the members, the President, the Senior Vice President, the Lady Female Vice President, and all the members of the executive body to felicitate Honorable Justice Mishra with Gajmala, which is a special garland which has been prepared for this occasion. I request my colleagues for this. This is not on behalf of Chhattisgarh High Court Bar Association, but this is on behalf of all the legal fraternity of Chhattisgarh. Thank you very much, sir. I forgot to address Honorable Justice Sunil Sinha, who is with us. Extremely sorry, extremely sorry. सुरक्षित रखेंगे और छत्तीसगढ़ की बात को हमेशा आगे बढ़ाएंगे, एक अलग पहचान को हमेशा बनाए रखेंगे। और जैसा हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की एक विशिष्ट विरासत है, हमारी सांस्कृतिक विरासत बहुत ही अद्भुत है, जिसमें कोसा, कांसा और कंचन, इन तीन चीजों का बहुत महत्व है। मैं आज इस अवसर पर अपने सभी साथियों से, बार एसोसिएशन के साथियों से निवेदन करूंगा कि वो माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हमारे राजगमछा और उनके लिए एक विशिष्ट मोमेंटो हमारे द्वारा बनवाया गया है, जिसमें कोसा, कांसा और कंचन तो छत्तीसगढ़ की विशेष छाप है वो Mishra is with us. I request Madam Dipali Pandey, Madam Shivali Dubey, Madam Lakshmi Kashyap, and Madam Pragya Pandey to felicitate, present a gift to Madam Mishra. I request Madam Honored to be a part of this wonderful event. I, Shivali Dubey, on behalf of the Bar Association of Chhattisgarh High Court, would like to extend my heartfelt gratitude and sincere thanks to our esteemed chief guest, Mr. Prashant Kumar Mishra, Honorable Judge, Supreme Court, and Ma'am Mrs. Sucheta Mishra for their taking out time to attend this function from their busy schedule.
and gave us opportunity to organize this function for them. I feel very fortunate that I got opportunity to appear in several cases before Mr. Prashant Mishra. Sir has always been an inspiration to me. Sir has always encouraged and guided me and other junior advocates of the bar, and as how can we improve our presentation and appearance better before the court in our case. Sir has versatile personality and holds a great command not only in the field of law but in other sectors as well. I have learned a lot from you, sir, and I hope that we will have the opportunity in future as well that your guidance will make our path easy. We feel proud that we were a member of our advocate fraternity as well. I would also like Mr. Ramesh Sinha, Honorable Chief Justice of our Chhattisgarh High Court, and other judges of the judicial fraternity, and Madam Judges and former judges of the Chhattisgarh High Court. I also thank Mr. Shailendra Dubey, Member Bar Council of India, Mr. Satish Chandra Verma, Advocate General High Court, and also thank senior members of the bar and seniors and my colleagues. I finally would like to thank all of you present here for making this time to be with us today and helping us make this event a grand success. Thank you all. This function will be followed by national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़